to realize the dream of regional connectivity, it is imperative to create an environment of peace and security. The ECO vision of regional connectivity requires collective efforts by the member states to address the serious security challenges faced by our region. ECO member states must jointly confront terrorism to establish a strong foundation for economic cooperation in the region. Without effectively overcoming this common threat, our dreams of seamless regional connectivity would remain a challenge. خطے کی سلامتی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں. علاقائی روابط کے فروغ کے لیے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنا ناگزیر ہے. دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی بھی بڑا چیلنج ہے. مشترکہ ترقی کے لیے ECO ملکوں کے درمیان روابط کا فروغ ناگزیر ہے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ECO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے ورچوئل خطاب. پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ کا نیا دور. قانون سے کوئی بالاتر نہیں. بار بار چالان پر گاڑی نیلام ہوگی. قانون کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانہ ہوگا. ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت. مناسب پارکنگ نہ رکھنے والے میرج ہالز بند کر دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹریفک سے متعلق اجلاس میں فیصلے. ٹریفک کے جدید نظام کی منصوبہ بندی, روڈ سیفٹی اور نظم و نسق پر تفصیلی بریفنگ. پنجاب حکومت کا کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ. حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو فوری دیت دینے پر اتفاق. ٹریفک کی بہتر روانی کے لیے لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد. تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات بہتر کرنا پڑیں گے. ٹریفک پولیس کو آخری چانس. اگلا موقع نہیں ملے گا, نہ کر سکے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. وزیر داخلہ محسن نقوی کی فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش دھماکے کے بعد FCC ہیڈ کوارٹرز آمد. یادگار شہداء پر حاضری, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. فیڈرل کانسٹیبلری کے افسران اور جوانوں سے ملاقات. وزیر داخلہ کا فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر جوانوں کی شجاعت اور بلند عزم کو خراج تحسین. جام شہادت نوش کرنے والے تینوں جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی. اتنے گھنٹے دھرنے میں دیے جاتے ہیں, وہی گھنٹے لگ سکتے تھے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے, صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, سڑکوں کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے. اور پھر ان کی لیگل ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے آپ کی. آپ نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا القادر یونیورسٹی کا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں سزا یافتہ شخص ہے, جیل کے اندر ہے. اب یہ انڈیا سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, افغانستان سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کے لوگ انڈین میڈیا کو فیڈ کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں کسی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی قیدی کو اتنی سہولیات میسر نہیں ہوئی جتنی عمران احمد نیازی کو میسر ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے. ملاقات کے لیے سوشل میڈیا پر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. بانی PTI سیاسی قیدی نہیں, میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی توجہ عوام کی فلاح کی بجائے دھرنوں پر مرکوز ہے. ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کو امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے پر توجہ دینی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں, بیس انہوں نے لیا ہے افغان میڈیا کا, اور افغان میڈیا کو بھی فیڈ جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کی ہے. پاکستان کی میڈیا سے نہ یہ خبریں آئی ہیں اور نہ یہاں پہ پھیلائی گئی ہیں. بانی PTI کی صحت کی خرابی سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. سوشل میڈیا پر جعلی خبریں افغان اور بھارتی میڈیا نے پھیلائیں. بانی PTI کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں بیان. پرائم منسٹر صاحب کا وہ خواب, سفارش کا کلچر ختم کرو. گورنمنٹ ایز اے ہول اپروچ نہ ہوتی تو پچھلے 18 مہینے میں ہم یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتے تھے. ایک ایک کام جو نہیں صحیح ہوگا ذمہ داری ہمیں ہی اٹھانی ہے.
وزارت توانائی صارفین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے، اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا اور شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تمام شعبوں میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا صارفین کی سہولت کے لیے 118 سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ حکومت معیشت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو پرکشش مواقع فراہم کرنے کے لیے مضبوط کیپٹل مارکیٹ کے قیام کے لیے کوشاں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا افتتاحی اجلاس۔ کیپٹل مارکیٹ مؤثر سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کرے، نجی شعبے کو درپیش مشکلات دور کرنے کی ہدایت۔ ورکنگ گروپس ترجیحی بنیادوں پر 2 ہفتوں میں ایکشن پلان اور کارکردگی کے اشارے تیار کریں گے۔ کونسل سہ ماہی بنیادوں پر پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1304 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,66,677 پر بند۔ مارکیٹ میں 41 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ حکومتی معاشی اصلاحات کے ثمرات نمایاں، ملکی معیشت بتدریج استحکام کی راہ پر گامزن۔ مالیاتی نظم و ضبط کے تسلسل، بہتر محصولات اور اخراجات میں کمی کے باعث معاشی اشاریوں میں بہتری۔ ملکی قرضہ 1371 ارب روپے کم ہوا۔ ترسیلات زر میں اضافہ، بڑی صنعتوں کی بحالی اور آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافے نے معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز طارق سے اپوزیشن کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بانی پی ٹی آئی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ ہم نے ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ سردار ایاز صادق۔ ایئر کوالٹی کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموک پر قابو پانے کے لیے اسموک گنز کا استعمال یقینی بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیٹرول، موٹر سائیکل، رکشے کی پیداوار پر فوری پابندی لگا دی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کو فروغ دیا جائے گا۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب۔ وادی تیرہ میں فتنہ الخارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وادی تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے پر محیط۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ملوث افغان خارجیوں نے وادی تیرہ کا ہی راستہ اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن AID سے تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیرہ سے آئے۔ ماضی میں خارجی دہشت گرد حکیم اللہ محسود کا مرکز بھی طویل عرصے تک تیرہ میں قائم رہا۔ 2014 میں APS پشاور پر حملے کی منصوبہ بندی بھی خارجیوں نے تیرہ میں واقع انہی خفیہ مراکز میں کی تھی۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں پاکستانی بیانیے کی جیت۔ بھارت کے سیکنڈ 11 کے مقابلے میں پاکستان کا آکسفورڈ کے پاکستانی طلبہ کو سامنے لانے کا فیصلہ۔ آکسفورڈ یونین میں پاکستانی طلبہ نے بھارت کے نئے سولائزیشنل دھارمک پینل کو منطق اور دلائل سے شکست دی۔ پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی۔ بھارت ہمارے سٹوڈنٹ پینل سے بھی دلائل کی جنگ نہ جیت سکا۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سمیت دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپوں اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری۔ جابرانہ کارروائیوں سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن۔ سیاسی رہنماؤں کا جموں میں صحافی ارفاز کے گھر کی مسماری پر شدید رد عمل۔ بھارت ہندوتوا پالیسی کے تحت صحافتی آزادی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ نظر بند حریت رہنما مشتاق الاسلام طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل۔
अफगान रियासत से मुंसलिक सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश। अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज़पेपर्स डिपार्टमेंट के सरकारी हैंडल को खामोशी से अफगान डिफेंस में तब्दील करके बराह रास्त प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म बना दिया गया। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन की रिपोर्ट ने अफगान सरकारी अकाउंट की तब्दीली बेनकाब कर दी। इस्लामाबाद पर हमले के इशारे देने वाली पोस्टों में इन्हीं रियासती शनाख्त रखने वाले अफगान हैंडल साबित हो चुके। अफगान हुकूमत का एक्स हैंडल अब प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें इस्लामाबाद को धमाकों से उड़ाने की धमकियां दी गईं। Highly respected, young, magnificent person, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. She was savagely attacked. She's dead. She's now with us. व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी 20 साल नेशनल गार्ड सारा बेगस्टॉम दम तोड़ गई। दूसरे जख्मी एहलकार 24 साल एंड्रयू वुल्फ की हालत भी तशवीशनाक। अफगानी हमलावर रहमान लखनवाल की हालत भी नाजुक। हमलावर माजी में अफगानिस्तान में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता रहा है। तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से लोगों की अमरीका मुंतकिली सिलसिले को मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज फाइनल में कल पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबला शाम 6 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स रवां साल 5वें T20 सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। Omar Farouk. लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी एशिया साउथ लाइट हैवीवेट टाइटल बरतानिया के कॉनर मस्तियार्ड्स के नाम। एशिया गोल्ड सुपर बैंटम वेट टाइटल जनूबी कोरिया के जॉन किम ने जीत लिया। सुपर वेल्टरवेट फाइट में बरतानिया के साहिर इकबाल, मिडल वेट में बरतानिया के जेम्स मिडगाफ और सुपर बैंटम वेट फाइट में अमेरिका के लॉरेंस न्यूटन की कामयाबी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। He bounced back and he shown the world. नूर जमान ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हम वतन खिलाड़ी हमजा खान को 9-11, 7-11, 11-7, 11-4 और 11-8 से हराया। चैंपियनशिप में 7 पाकिस्तानी और 17 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। 3 games to 2, 9-11, 7-11. और पाकिस्तान के एहसान उल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी का एक और एजाज। पहली बार ATP टूर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। डबल सेमीफाइनल में तुर्की की जोड़ी को 6-1 और 6-4 से हराया। ATP चैलेंजर कप एहसान उल हक के करियर का आखिरी टूर्नामेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक वजारत तवानाई का एक और आवाम दोस्त इक़दाम 118 जदीद सर्विसेज का आगाज। अब सारिफीन न जाएं बिजली दफ्तर, न बार बार के चक्कर। बिजली की खराबी, वोल्टेज कम या ज्यादा होना, नए कनेक्शन का हुसूल या हंगामी हालात में हॉटलाइन से फौरी राबिता। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से किसी भी वक्त उर्दू या किसी भी इलाकाई जबान में कॉल मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। कॉल मिलाने के फौरी बाद मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपकी शिकायत भेजी जाएगी। शिकायत के इंदराज के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पैकेज की सूरत में बिना बैलेंस कॉल मिलाने की सहूलत। नंबर मसरूफ मिलने पर कॉल बैक का ऑप्शन। अब न किसी जान पहचान की जरूरत,
न सिफारिश कराने की जहमत, बस 118 मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। इसके अलावा पावर स्मार्ट ऐप से भी शिकायत के इंदराज और ट्रैकिंग की सहूलत। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि खत्ते की सलामती को बहुत से खतरात लाहिक हैं। इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ECO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा कि मुश्तरका तरक्की के लिए कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन नागुज़ीर है। To realize the dream of regional connectivity, it is imperative to create an environment of peace and security. The ECO vision of regional connectivity requires collective efforts by the member states to address the serious security challenges faced by our region. ECO member states must jointly confront terrorism to establish a strong foundation for economic cooperation in the region. Without effectively overcoming this common threat, our dreams of seamless regional connectivity would remain a challenge. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे के लिए तरजीही स्कीम्स की निशानदही में मकामी कम्युनिटीज़ की शमूलियत यकीनी बनाने और फंड्स के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में मनसूबाबंदी, बैनुल-सूबाई कोऑर्डिनेशन, मजहबी उमूर और पार्लिमानी उमूर के वज़रा समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मालियाती नज़्म नस्क और शफाफियत मजबूत बनाने और पाकिस्तान को जदीद चैलेंजेस से निपटने में मदद फराहम करने में अकाउंटेंसी के शोबे के अहम किरदार पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने IFAC के साथ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के ताउन को सराहा और पाकिस्तानियों को उभरते हुए आलमी मयारात और तकनीकी तब्दीलियों के लिए तैयार करने की अहमियत पर जोर दिया। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक के जदीद निज़ाम, रोड सेफ्टी और नज़्म नस्क के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात बेहतर करना पड़ेंगे। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिला, ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। इजलास में फैसला किया गया कि मुनासिब पार्किंग न रखने वाले मैरिज हॉल्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में हादसात में जाम बहक अफराद के अहले खाना को फौरी दियत देने पर इत्तेफाक, जबकि कम उम्र बच्चों की ड्राइवर खत्म करने के लिए क्रैक डाउन का फैसला किया गया। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए लाहौर के 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने खुद कुश हमले की जगह का मुआयना किया और FC के अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी नज़ीर गार और IGA खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने फितना खारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की शुजाअत और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और उनके ख़ानदानों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की फलाह और अमन व अमान पर तवज्जो देने के बजाय धरनों पर वक्त ज़ाया कर रही है। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। तफसील उमर फारूक से।
नौशहरा में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इतलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस प्लस को सूबे का वज़ीर-ए-आला लगा दिया गया है, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने की बजाय धरनों की सियासत में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस सूबे में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को, वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है और जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की साजिश की जा रही है। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स अब भारतीय सोशल मीडिया हैंडलर्स की हिमायत ले रहे हैं। आपने इतना बड़ा डाका डाला अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है। अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। पाकिस्तानी मीडिया सेंसिबल है, उनको पता है कि अंदर ट्रेडमिल भी मिली हुई है, अंदर एक्सरसाइज भी है, जिम इक्विपमेंट भी है, वॉकिंग गैलरी भी है, खाना भी जो मेन्यू देते हैं वो मिलता है। मैं दावे से कहता हूँ किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान हमें सबसे मुकद्दम है, किसी जात के लिए मुल्क को दाव पर लगाना काबिल कबूल नहीं। झूठे बयानियों को एक बार फिर शिकस्त होगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ। वक्फा सवालात में वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ईवान को बताया, सोशल मीडिया पर बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भारतीय मीडिया ने फैलाएं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफ़गान मीडिया का, और अफ़गान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम के माली बिल की नकल ईवान में पेश की। मनी बिल से मुतालिक अरकान सेनेट तजावीज़ 1 दिसंबर तक पेश करेंगे। कायम कमेटी ख़जाना अपनी तजावीज़ 10 दिन के अंदर ईवान में पेश करेगी। निजकारी से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली ने निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम का बिल ईवान में पेश किया। सदर नशीन ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सेनेट इजलास पीर के रोज़ दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,66,677 पर बंद हुआ। कराची से रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स के लेन देन का भरपूर कारोबार हुआ। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,630 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,67,000 की हद अबूर कर गई। माहिरीन का कहना है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहरीन का कामयाब दौरा, IMF की जानिब से पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड की अगली किस्त की फरहमी की यकीन दहानी और पाकिस्तान के रशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ मजबूत होते तजारती ताल्लुकात मार्केट में तेजी की वजह है। ये हफ्ता भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा। तकरीबन 4,400 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते मार्केट ने किया और इस महीने की बात करें तो अराउंड मार्केट 4,900 पॉइंट्स इंक्रीज कर चुकी है। रोल ओवर के बावजूद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस हफ्ते हमने बहाल होते हुए देखा। मार्केट में कंटिन्यू बाइंग देखने में आ रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 559 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 238 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 199 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 122 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज मार्केट में 41 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत के 3,66,000 सौदे हुए, जिनमें 59 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस समेत फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वजारत तवानाई ने बिजली के सारिफीन की शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन 118 का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे नवाब अली शाह। बिजली की फराहमी में दुश्वारी हो, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो या फिर वापडा के मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत हो, हुकूमत ने शहरियों की आसानी के लिए हेल्पलाइन 118 का आगाज कर दिया है। उस एक्सीएन के नंबर के ऊपर कॉल करें, फोन ना उठाए, बंदा एक सीरियस किस्म की
वो मेंटल ट्रॉमा में से गुजरता है। इसमें से आज़ाद करना है हमने लोगों को, है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वो ख्वाब, सिफारिश का कल्चर ख़त्म करो। गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच ना होती तो पिछले 18 महीने में हम ये चीज़ें नहीं अचीव कर सकते थे। एक एक काम जो नहीं सही होगा, जिम्मेवारी हमें ही उठानी है, उसके ऊपर पे स्टेप्स भी हमें उठाने पड़ेंगे, चाहे हमें अच्छे लगे या ना लगे। बिजली कभी तूफान के अंदर जाती थी तो फ़ोन सुनने वाला कोई नहीं होता था। हम कोशिश कर रहे हैं इस निज़ाम के ज़रिए एक ही बराबरी के ऊपर ला के खड़ा करें। अगर ट्रांसफार्मर्स नहीं है तो ख़रीदो। ये उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन है जो हमने जी मोबाइल सेक्टर की पॉलिसी के वक्त किया था। वापडा हुक्काम ने वफाकी वजीर अवैस अहमद लिगारी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हेल्पलाइन 118 के जरिए हर शहरी बिजली से मुतालिक शिकायत रजिस्टर करके किसी भी वक्त उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। पीटीवी न्यूज के लिए इस्लामाबाद के स्टाफ कॉलेज वापडा से नवाब अली शाह। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत कैपिटल मार्केट की तरक्की के लिए पुरअज़्म है ताकि मईशत के फ़रोग़, सरमायाकारों की शमूलियत में इजाफे और जारी ढांचा जाती इस्लाहात में मदद मिल सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल के इफ्तिताही इजलास में निजी शोबे को दरपेश मुश्किलात दूर करने की हिदायत की। इजलास में फैसला हुआ कि तरजीही शोबों में वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएं जो 2 हफ्तों में एक्शन प्लान और कारकर्दगी के इशारे तैयार करें, जबकि काउंसिल हर सहमाही में पेशरफ्त का जायजा लेगी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा माहाना इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है और हुकूमती इस्लाहात के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। मालियाती नज़्म व ज़ब्त के तसलसल, बेहतर महसूलात और अखराजात में कमी के बायस माशी इशारियों में बेहतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफा, बड़ी सनतों की बहाली और IT बरामदात में इजाफे ने मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्की कर्जा 1371 अरब रुपए कम हुआ है। कर्ज में कमी इजाफी माली वसाइल को महंगे कर्जों की क़बल अज़ वक्त अदायगी में इस्तेमाल करने की हिकमत अमली के तहत मुमकिन हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ नौशहरा में उमूर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की रिहाइशगाह पर गए और उनसे उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती का बिछड़ जाना ख़ानदान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी सदमा है। उन्होंने कहा कि माँ की मोहब्बत, दुआ और शफ़क़त किसी नेमत से कम नहीं होती, पसमानदगान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने भी वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की रिहाइशगाह पर उनसे उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान इख्तियार वली खान के गम में बराबर के शरीक हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुबाहसे में एक बार फिर साबित हो गया कि बयानिया शख्सियात के कद से नहीं बल्कि दलील, कानून और ज़मीनी हक़ाइक़ से कुव्वत पाता है और यही वजह है कि भारत हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग नहीं जीत सका। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मुकर्रिरीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने पाक भारत मुबाहिसा इस करारदाद पर रखा था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली है जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर भेजा जा रहा है। मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर JSI दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का पैनल मैदान में उतारा। भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। भारत का नया सोशलाइजेशन व धार्मिक पैनल पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, असरार खान काकड़ और अहमद नवाज की मंतक और दलाइल का तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे आलमी तालीमी फोरम पर पाकिस्तानी नौजवानों की ये कामयाबी सबूत है कि पाकिस्तान का फिक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंदी का मकसद अफगान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले रोकना था। जंग बंदी के बावजूद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर बड़े दहशतगर्द हमले हुए। इस तनाजुर में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी फाल नहीं। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस को संजीदगी के साथ हल करने की पूरी अहलियत रखती हैं। तर्जुमान ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर कोई नई पाबंदी नहीं आयद की गई। UAE में पाकिस्तानी सफीर शफकत अली खान ने भी वीज़ों पर पाबंदी की तरदीद की है। उधर वादी तीरा में फितनातुल ख़वारिज की बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ज़राए के मुताबिक वादी तीरा और पेशावर के दरमियानी फासला तकरीबन 70 किलोमीटर और सफ़र का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे पर मुहित है। 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्विस अफगान खारजियों ने वादी तीरा का ही रास्ता अपनाया था। 25 नवंबर को
حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیراہ سے آئے. ماضی میں خارجی دہشت گرد حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیراہ میں قائم رہا. 2014 میں APS پشاور پر حملے کی منصوبہ بندی بھی خوارج نے تیراہ میں واقع انہی خفیہ مراکز میں کی تھی. منشیات کے کاروبار سے جڑے اندرونی مفادات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. DG ISPR پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ منشیات کے کاروبار اور دہشت گردی میں گہرا تعلق ہے. وادی تیراہ میں اس بڑھتے گٹھ جوڑ اور اس سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پشاور میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فورسز کی طرف سے سری نگر اور دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر اور دیگر علاقوں پر ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز پر چھاپے مارے اور تلاشی لی. بھارتی فورسز نے شہر میں حساس مقامات پر مزید چیک پوسٹیں قائم کی جہاں گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے. ان جابرانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی مسلسل اجیرن بنی ہوئی ہے. مقبوضہ علاقے کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما وحید الرحمان پرا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے سینئر رہنما محمد یوسف تارگامی، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے صحافی ارفاز احمد کا گھر مسمار کرنے کی بہیمانہ کارروائی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے صحافتی آزادی کا گلا گھونٹنے کی بھارتی پالیسی کا حصہ قرار دیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس کارروائی سے ان کی حکومت کو مکمل طور پر لاعلم رکھا گیا اور یہ ایک منتخب حکومت کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش ہے. صحافی کے گھر کی مسماری کی متعدد ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں متاثرہ خاندان کے افراد کو انتظامیہ کی ظالمانہ کارروائی پر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جانب غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما مشتاق الاسلام کو حالت بگڑنے پر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا. بھارتی حکومت نے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو طبی سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اکثر قیدی کئی پیچیدہ امراض کا شکار ہو چکے ہیں. کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق وزارت توانائی کا ایک اور عوام دوست اقدام 118 جدید سروسز کا آغاز. اب صارفین نہ جائیں بجلی دفتر، نہ بار بار کے چکر. بجلی کی خرابی، وولٹیج کم یا زیادہ ہونا، نئے کنیکشن کا حصول یا ہنگامی حالات میں ہاٹ لائن سے فوری رابطہ. پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کسی بھی وقت اردو یا کسی بھی علاقائی زبان میں کال ملائیں اور اپنا مسئلہ حل کروائیں. کال ملانے کے فوری بعد متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو آپ کی شکایت بھیجی جائے گی. شکایت کے اندراج کے بعد آپ کو ایک کمپلین نمبر دیا جائے گا جس سے آپ اپنی شکایت کو ٹریک کر سکتے ہیں. آن لائن ٹریکنگ اور مانیٹرنگ پیکج کی صورت میں بنا بیلنس کال ملانے کی سہولت. نمبر مصروف ملنے پر کال بیک کا آپشن. اب نہ کسی جان پہچان کی ضرورت، نہ سفارش کرانے کی زحمت. بس 118 ملائیں اور اپنا مسئلہ حل کروائیں. اس کے علاوہ پاور سمارٹ ایپ سے بھی شکایت کے اندراج اور ٹریکنگ کی سہولت. وزارت توانائی، پاور ڈویژن، حکومت پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہونے والی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینکس گیونگ کال کے دوران 20 سالہ سارہ بیکسٹرام کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتہائی قابل احترام نوجوان شاندار شخصیت کی مالک تھیں. صدر ٹرمپ نے سارہ کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی. اس سے قبل امریکی حکام نے وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے والے 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکھنوال کے حوالے سے تصدیق کی کہ وہ ماضی میں افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا رہا ہے. بائیڈن انتظامیہ نے مبینہ شوٹر کو ستمبر 2021 میں امریکہ لانے کا یہ جواز پیش کیا کہ اس نے امریکی حکومت بشمول CIA کے ساتھ قندھار میں ایک پارٹنر فورس کے رکن کے طور پر کام کیا تھا. وائٹ ہاؤس کے نزدیک افغان باشندے کی جانب سے نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ واقعے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ملکوں سے تارکین وطن کی امریکہ نقل مکانی کے سلسلے کو مستقل طور پر روک دیں گے. ٹروتھ سوشل پر سلسلہ وار پیغامات میں امریکی صدر نے اگرچہ اس پابندی کے نفاذ کے طریقہ کار اور ٹائم لائن کو کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد امریکی نظام کی مکمل بحالی ہے. بے قابو نقل مکانی نے امریکہ کے وسائل پر دباؤ ڈالا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ امریکہ میں مقیم 19 ملکوں کے گرین کارڈز ہولڈرز کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی، جن میں افغانستان، کیوبا، ہیٹی، ایران، صومالیہ، وینزویلا، میانمار، چاڈ، جمہوریہ کانگو، برونڈی، یمن، لاؤس، ترکمانستان، گیانا، ایریٹریا، سیریلیون، ٹوگو اور لیبیا شامل ہیں.
जर्मन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से अल्जीरिया के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में अल्जीरिया की फाल शिरकत को सराहा और दो तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए बाकायदा पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर जोर दिया। अल्जीरिया के सफीर ने अपनी आला क़यादत का खुसूसी पैगाम चेयरमैन सेनेट तक पहुंचाया और अल्जीरिया की सेनेट के सदर की जानिब से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अल्जीरिया के दौरे की दावत दी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि हम अपने शहरों, घरों और इदारों को नए मौसमियाती हक़ाइक़ के मुताबिक किस हद तक ढालते हैं। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तहत कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इस हवाले से होने वाली तहकीक को अमली पॉलिसियों में बदलने की अशद ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन तामीरात, मनसूबा साजों, मुहक्किकीन और पॉलिसी साजों ने पाकिस्तान में मौसमियाती दबाव के मुकाबले के लिए शहरों और घरों के नए डिज़ाइन पर गौर किया। वज़ारत कौमी वर्सा और सकाफत और निजी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इस्लामाबाद में कल्चरल फैशन शो हुआ। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। झिलमिलाते खूबसूरत पाकिस्तानी मलबूसात और सकाफत के मुख्तलिफ रंग नजर आए एक ही स्टेज पर। इस्लामाबाद में उभरते हुए डिजाइनर्स के हुनर को उजागर करने के लिए सजाया गया फैशन शो। मॉडल्स ने दीदा जेब मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके कैट वॉक से महफिल में रंग भर दिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी फरानाज अकबर और सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। हर सूबे की सकाफती परफॉर्मेंसेस भी शो का हिस्सा थीं। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क की सकाफत को उजागर करते हैं बल्कि नौजवान डिजाइनर्स को अपनी सलाहियतें दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी फराहम करते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतरार बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद फूड फेस्टिवल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम कानूनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना ज्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजारते हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का हकीकी मुस्तकबिल है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को हुकूमत पर अवाम के एतमाद का मंजर करार दिया। इससे काबिल बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने फूड फेस्टिवल में रिवायती पाकिस्तानी खानों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर काम जारी है। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में क्लाइमेट समिट से खिताब की तफसील बताएंगी वरदा सलीम। लाहौर में क्लाइमेट समिट से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और हदायत की रोशनी में मौसमियाती चैलेंजेस से मुकाबले के लिए मौसर हिकमत अमली पर काम जारी है और स्मोक में कमी के लिए स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारा पंजाब AQI आप जरूर डाउनलोड करें, पोर्टल chatbot डाउनलोड करें। You can talk to your WhatsApp to know what is your air quality, how will it change in next 1 week and what are the impacts। और पूरे पंजाब का डेटा अब आपके पास एयर क्वालिटी का मौजूद है। हमारे पास AI ड्रिवन फोरकास्टिंग मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ्फुज के लिए खुसूसी फोर्स का कयाम अमल में लाया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रोकथाम और पेट्रोल पर चलने वाली चिंची रक्षों की मजीद प्रोडक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो चेयर किया उसमें हमने पेट्रोल चिंची पर प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया फॉर लाहौर। डू यू नो we can have electric rickshaws, we can have electric bikes, बट जो बाइक्स हैं पेट्रोल बाइक्स उसको हम फेज वाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, लेजिस्लेट करती है, इन्फोर्समेंट करती है, लेकिन जो सिटीजन्स हैं वो ऑफ कोर्स दे प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड बिगर रोल of how to change their choices, everyday choices,
towards climate resilience. मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमती इकदामात से फसलों की बाकियात जलाने में नुमाया कमी आई है, जबकि जंगलात के तहफ्फुज और शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए अवामी सतह पर आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। कराची में मीडिया से वज़ीर आला की गुफ्तगू की तफसील से आगाह करेंगी आयशा आफरीन। महकमा सकाफत सिंध की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल हमारी कदीम सकाफत को उजागर करने का बेहतरीन मौका है और ये सूबे के कारीगरों और फनकारों के लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल न सिर्फ फनून बल्कि सकाफती हम आहंगी का पैगाम भी है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को पाकिस्तान से शिकस्त के बाद उनकी बौखलाहट करार देते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। भारत के एक वजीर ने कहा कुछ बात, तो मैंने कहा किसी में अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। अल्लाह के अलावा और किसी में ताकत नहीं है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और वहाँ रखी गई दस्तकारियों और मुख्तलिफ सकाफती अशिया को सराहा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। भारतीय वज़ीर दिफा का मुतनाज़े बयान। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। स्वामी नारायण मंदिर कराची में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की आला क़यादत समेत सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर दिफा से फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर और किसान से गन्ने की खरीदारी की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स करने के लिए कार्डल बनाने पर पंजाब की 10 शुगर मिल्स को शोकोस नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने फातिमा शुगर मिल्स में नवंबर की 10 तारीख को एक मीटिंग की, जिसमें इन 10 मिलों ने मिलकर फैसला किया कि गन्ने की क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी। इजलास में शेखू शुगर मिल्स, थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तांदियावाला शुगर मिल्स, JK1 शुगर मिल्स, अशरफ शुगर मिल्स और कश्मीर शुगर मिल्स के नुमाइंदगार ने शिरकत की, जबकि सराज शुगर मिल्स, 2 स्टार शुगर मिल्स और हक बाहू शुगर मिल्स के नुमाइंदगार ने इजलास में वर्चुअल शिरकत की। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक किसी भी मार्केट में फरीकैन का गठजोड़ बनाकर कीमतों को फिक्स करना या दीगर कारोबारी फैसले करना कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई सीजन में गन्ने की क्रशिंग में ताखीर से मार्केट में चीनी की सप्लाई मुतासर हो सकती है, जिससे मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा होने और रिटेल चीनी की कीमतों में इजाफे का खदशा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जो मुल्क में बिजली का बहरान खत्म करने की इस्तेदाद रखता है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों को चाहिए कि वो मिलकर छोटे और बड़े हाइडल मनसूबों पर काम करें। उन्होंने कहा कि हाइडल एनर्जी न सिर्फ बिजली का सस्ता तरीन जरिया है बल्कि इससे माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी लाई जा सकती है। इससे कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में इंटरनेशनल सोलर एनर्जी में पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के तहत किसानों में जदीद ट्रैक्टर्स की तकसीम जारी है। तफसील से आगाह करेंगे काशिफ मुनीर। ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब में अरकान पार्लियामेंट चौधरी शहबाज बाबर, आरा महमूद गेल, कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर समेत किसानों और महकमा ज़राअत के अफसरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से शफाफ कुरानदादी के जरिए जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है ताकि फसलों की पैदावार में इजाफा, ज़रूरी अखराजात में कमी मुमकिन हो सके। हुकूमत के किसान दोस्त इक़दाम में मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये किसान पैकेज है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने शुरू किया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एज एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब पाकिस्तान और ख़ास तौर पंजाब हमारा जो एग्रीकल्चर की हमारी बास्केट है, पाकिस्तान की फूड बास्केट है। फैसलाबाद डिवीजन को ही बहुत ज़्यादा 417 के करीब ट्रैक्टर्स आज दिए जा रहे हैं। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं हम सब किसान भाई, क्योंकि मेरा तलक भी ज़िम्मेदार घराने से है।
इस मौका पर 52 काश्तकारों में ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की गईं, जिन पर 10 लाख रुपया फी ट्रैक्टर सब्सिडी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम न सिर्फ किसानों का माशी बोझ कम करेगी बल्कि पंजाब के ग्रीन इनकलाब में भी अहम किरदार अदा करेगी। काशिम मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल की सदारत में हुआ। इत्तेहादी क़यादत ने बलूचिस्तान हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि सियासी हम आहंगी और मजबूत पार्लिमानी राब्ते सूबे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल ने बलूचिस्तान में तरक्की और पायदार अमन के लिए इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ को खुशाइन करार दिया। और नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इस्लामाबाद में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सियासी और इंसानी सूरत हाल पर नई किताब द कश्मीर क्वेश्चन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड बियॉन्ड अगस्त 2019 की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने कहा कि ये किताब कश्मीरियों की जदोजहद को मौसर अंदाज में उजागर करती है। डायरेक्टर जनरल ISSI सुहेल महमूद और दीगर मुकर्रीन ने किताब को कश्मीर पर मुस्तनद तहकीक पर मबनी और भारतीय बयानिया के मुकाबिल एक अहम इल्मी इजाफा करार दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -11, लह -9 और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी के तीसरे रोज 6 सनसनीखेज मुकाबले हुए। सुपर वेल्टरवेट फाइट में बरतानिया के साहिर इकबाल ने बांग्लादेश के उमर फारूक को हरा दिया। साहिर इकबाल ने हरीफ बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। मिडिल वेट बाउट में बरतानिया के जेम्स मेटकॉफ ने जमहूरिया डोमिनिकन के जूलियो डी जेसिस रॉड्रिग्स को तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। WBA एशिया साउथ लाइट हैवीवेट का टाइटल बरतानिया के कॉनर मिस्टियाडिस ने जीत लिया। उन्होंने नाइजीरिया के जामियो अनिमाशॉइन को जेर कर दिया। सुपर बैंटमवेट फाइट में अमेरिका के लॉरेंस न्यूटन ने जमहूरिया डोमिनिकन के जुआन अल्कांतारा सांचेज के खिलाफ कामयाबी हासिल की। जजेस ने लॉरेंस न्यूटन को मुत्तफका तौर पर फातेह करार दिया। WBA एशिया गोल्ड सुपर बैंटमवेट टाइटल फाइट जनूबी कोरिया के जॉन किम के नाम रही। उन्होंने 10 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबले के चौथे राउंड में ही हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मुकाबलों के खत्म पर मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हैं। दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले उरूज पर हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़रिए इंतजाम जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलबात को बॉक्सिंग के खेल के बारे में आगाही फराहम की गई। पाकिस्तान में बॉक्सिंग को फ़रोग देने समेत टैलेंट हंटिंग के हवाले से मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर नौजवानों ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और सेमिनार्स को नहायत मालूमाती करार दिया। सेमिनार में बड़ी तादाद में स्कूल्स, कॉलेजेस और मुख्तलिफ जामियात के तलबा समेत बॉक्सिंग के रेफरीज, जजेस ने भी शिरकत की और WBA के ट्रेनर्स की सलाहियतों से इस्तेफादा किया। 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी हासिल की और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने 4 में से 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। नूर जमान ने चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। मुसफ स्क्वाश कम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में नूर जमान का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी हमजा खान से हुआ। नूर जमान ने फाइनल मुकाबला 2 के मुकाबले में 3 गेम से अपने नाम किया। उनकी जीत का स्कोर 9-11, 7-11, 11-7, 11-4 और 11-8 रहा। चैंपियनशिप में 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा जमहूरिया चक, मिस्र, हांगकांग, जापान, मलेशिया और
स्विट्जरलैंड के 17 खिलाड़ियों ने भी शिरकत। पाकिस्तान के इसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी का एक और एजाज, पहली बार एटीपी टूर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। पीटीएफ टेनिस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एटीपी चैलेंजर कप के डबल सेमीफाइनल में इसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी का मुकाबला तुर्की के मर्ट अलकाया और एलेप पोरोस से हुआ। पाकिस्तानी जोड़ी ने मुकाबला 6-1 और 6-4 से अपने नाम करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एटीपी चैलेंजर कप इसामुल हक के करियर का आखिरी टूर्नामेंट है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुरबत में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फलाही इदारे हेल्पिंग हैंड के ताउन से मुनक्किदा एक रोज़ा गाला में मारूफ स्पोर्ट्स शख्सियात, कॉलेज फैकल्टी और तालबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तालबात के दरमियान फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर समेत मुख्तलिफ मुकाबले कराए गए। असातिज़ा और तालबात ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स मजीद कराए जाएं ताकि तालबात की सलाहियतें सामने आ सकें। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तालबात को ट्रॉफीज और एजाजी शील्ड्स भी दी गईं। पंजाब स्टेडियम में 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की तकरीब हुई। ओलंपियन अरशद नदीम समेत कौमी हीरोज और स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने मशल अरशद नदीम के हवाले की, जिन्होंने दीगर खिलाड़ियों के हमरा टॉर्च पकड़कर पंजाब स्टेडियम का चक्कर लगाया। ट्रॉफी के साथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपियंस ने डबल डेकर बस पर लाहौर शहर का दौरा किया। ओलंपियन अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स के लिए खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का शुक्रिया अदा किया। पंजाब का दस्ता 3 और 4 दिसंबर को कराची रवाना होगा। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगी। आयरलैंड ने बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में 39 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। चट्टोग्राम में खेले गए मैच में आयरिश टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 181 रन बनाए। हैरी ट्रैक्टर ने 45 गेंदों पर 5 छक्कों और 1 चौके की मदद से 69 रन की इनिंग्स खेली। उनके भाई टिम ट्रैक्टर ने 32 और क्रिट्स कैम्फर ने 24 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हसन जाकिब ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में मेजबान टीम 9 विकेटों पर 142 रन ही बना सकी। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके। तौहीद हरदोई 83 रन के साथ नॉट आउट रहे, ताहम टीम को कामयाबी से हमकिनार न कर सके। 4 ओवर्स में 13 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आयरलैंड के मैथ्यू हैम्फ्रीज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। यूएफा चैंपियंस लीग में इतालवी क्लब बोलोनिया ने ऑस्ट्रियन क्लब सेल्सबर्ग, जबकि इंग्लिश क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट ने स्वीडिश क्लब माल्मो को हरा दिया। बोलोनिया में खेले गए मैच में मेजबान क्लब ने सेल्सबर्ग को 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी। फातेह टीम की जानिब से जेंस ओदेगार्ड, थाइस डांगडा, फेडरिको बर्नार्डिशी और रिकार्डो ने 1 गोल किया। सेल्सबर्ग की तरफ से वाहिद गोल यॉर्बे वर्टसन के हिस्से में आया। नॉटिंघम में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने माल्मो को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दी। कप्तान रायन अर्नो कालमेंडो और निकोला ने गोल करके कामयाबी यकीनी बनाई। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।